Hello students, welcome my channel. Myself Dr. D.K. Sinha and today topic is genetic code. इसके पहले लेक्चर में फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए हम लोग जान चुके हैं. फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड replication occurs in S phase of cell cycle. Formation of RNA from DNA is called transcription, occurs in G1 and G2 phase of cell cycle. Okay, and according to code information present in RNA, formation of polypeptide chain or protein takes place. Okay, अब देखना है कि आखिर डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में आया, आरएनए के अनुसार एमिनो एसिड का अटैचमेंट होता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो वह इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर करता है. यू नो, सपोज दैट दिस इज डीएनए मोलिक्यूल. यू नो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड मोलिक्यूल. ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड इट मीन्स 3' 5' स्ट्रैंड, 3' to 5' strand that acts as template strand. On template strand, formation of RNA or messenger RNA takes place. Okay, in prokaryotes only one RNA polymerase is responsible for formation of all types of RNA, but in eukaryotes 3 types of RNA polymerase are present that forms 3 types of RNA polymerase. First, ribosomal RNA, second, messenger RNA, third, transfer RNA. Okay, you also know in case of eukaryote polymerase second forms non-functional messenger RNA or called, that is also called hnRNA. After tailing, capping and splicing, hnRNA gets converted to functional messenger RNA. Okay, अब देखिए मैसेंजर आरएनए, सपोज दैट दिस इज मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए. ओके, इन मैसेंजर आरएनए कंप्लीमेंट्री कोड, कंप्लीमेंट्री बेस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड इज प्रेजेंट एंड द बेस ऑफ मैसेंजर आरएनए, दिस आरएनए इज एज लाइक नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड. ओके, अब देखिए यहां मान लीजिए सपोज इन आरएनए टी इज नॉट प्रेजेंट, इट मीन्स यू सी ए जी सी ए, दीज आर द नाइट्रोजिनस बेसेस न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन आरएनए. अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस, attachment of amino acid on ribosome takes place for protein formation. इसी सीक्वेंस के आधार पर एमिनो एसिड का अटैचमेंट होता है एंड द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन मैसेंजर आरएनए और इन डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिक कोड. Is called genetic code. The term genetic code was given by George Gamow while discovered by Nirenberg, Khorana and Mathai. Okay, genetic code का मतलब क्या हुआ? Genetic code means sequence of nucleotides on RNA or DNA, and according to sequence formation of protein takes place. This sequence is called genetic code. Sequence is called genetic code. Okay, now see relationship between sequence of nucleotide of mRNA or DNA and sequence of amino acid in polypeptide chain is called genetic code. It means messenger RNA also have code for amino acids and code present on messenger RNA for amino acid is called codon. Okay, that is called codon. Codon means codes
4 एमिनो एसिड्स कहां होगा? ऑन mRNA इज कॉल्ड कोडोन। यहां अलग अलग एमिनो एसिड के लिए मैसेंजर आरएनए पर कोड है और इसी कोड का नाम हम क्या देंगे? कोडोन। तो जेनेटिक कोड हो गया होल सीक्वेंस और अलग अलग एमिनो एसिड का कोड, दैट इज कॉल्ड कोडोन। देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन जेनेटिक कोड एंड कोडोन। देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन कोड एंड कोडोन। ओके, कोडोन मीन्स सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन मैसेंजर आरएनए that codes for a specific amino acids or amino acid, that is called codon. And nucleotide sequence on messenger RNA that gives information for protein synthesis is called genetic codon, sorry genetic code. Okay, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। जनरली नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, total number of amino acids that participates in protein synthesis is 20. Okay, and code is of nucleotides, it means nitrogenous base. कोड किसका बना? तो न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड मीन्स नाइट्रोजनस बेस, और बेसिस कितना है? तो बेस है 4, बेस 4। अब अगर एक बेस से हम एक कोड बनाएं तो 4 बेस से कितना कोड बन जाएगा? इन केस ऑफ केस फर्स्ट अगर हम चलें, केस फर्स्ट, इफ कोड इज सिंगलेट, सिंगल बेस का एक कोड बनाएं, इट मीन्स 4 पर पावर 1 इज इक्वल टू 4 कोड्स। 4 कोडोन का नंबर कितना हो जाएगा? 4 कोडोन्स। इन केस ऑफ सिंगलेट, सिंगलेट कोडोन मीन्स बेस फर्स्ट इफ कोड इज सिंगलेट। सिंगलेट मीन्स ईच, या सिंगल लिखिए, सिंगल बेस कोड्स एन एमिनो एसिड्स। अगर एक बेस से एक एमिनो एसिड का कोड होता है तो 4 बेस से 4 कोडोन। इट मीन्स 4 कोडोन्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर कोडिंग 20 एमिनो एसिड्स। नंबर ऑफ एमिनो एसिड 20, कोड कितना बना? 4, तो 4 का कोड होगा, बाकी 16 का, तो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स इट इज रॉन्ग, सिंगलेट कोडोन नहीं हो सकता है। नाउ सी, इफ कोडोन इज डबलेट, डबलेट मीन्स 2 नाइट्रोजिनस बेस कोड्स फॉर ए सिंगल एमिनो एसिड। अगर 2 नाइट्रोजिनस मिला करके हम एक कोड बनाएं तो टोटल नंबर ऑफ कोडोन will be 16. Total number of codon will be 16. Second case, if code is a doublet, doublet means 2 bases codes for an amino acid. एक एमिनो एसिड के 2 बेस का कोड बनाने, तो यहां क्या था? 4 पर पावर 1 था ना, 1 के लिए, 2 के लिए 4 to power 4, 4 multiply 4 is equal to 16 कोडोन्स। ओके, अब 16 कोडोन कौन बनेगा? ध्यान दें, ए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिन। मल्टीप्लाई करते जाए, कंटिन्यू डबल कर जाए, ए जी, ए सी, ए यू। नेक्स्ट जी ए, जी जी, जी सी, जी यू। थर्ड हो गया यहां सही, सी ए, सी जी, सी ए, सी जी, सी सी, सी यू। नेक्स्ट यू ए, यू ए, यू जी, यू सी, यू यू। टोटल कितना हो गया? काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कोडोन्स। बट
16 codons are not sufficient also, because number of amino acid 20, नंबर ऑफ एमिनो एसिड 20, तो 16 का कोड हो रहा 4 अभी भी बच रहा है। इसका मतलब है कि डबलेट कोडोन की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, डबलेट कोडोन की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तब गैमो डिस्कवर किए कि नहीं, अब 2 से काम चलने वाला नहीं है, तो तीसरे हम 3 को मिलाकर के ये कोड बनाए एंड उसका नाम दिया गया ट्रिपलेट कोडोन। ट्रिपलेट कोडोन मीन्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेसेस। थर्ड स्टेज, if code is triplet means one codon consists of 3 nitrogenous base, so number of codon will be, number of codon कितना होगा 4 to the power 3 times, it means 4 multiply 4 is equal to 64 codons। अब देखिए एमिनो एसिड का नंबर था 20, कोडोन का नंबर हो गया 64, ये भी ज्यादा हो गया। लेकिन अगर हम 2 लेकर चलते हैं तो 4 एमिनो एसिड का कोड ही नहीं होता। इट मीन्स 64 कोडोन्स आर प्रेजेंट फॉर कोडिंग ऑफ 20 एमिनो एसिड्स। ओके, एंड इट मीन्स number of amino acid is 20, codon is 64, it means one amino acid is coded by more than one codon। amino acid का नंबर कितना 20, कोडोन का नंबर 64, इसका मतलब क्या है, one amino acid is coded by more than one codon। एक एमिनो एसिड का एक से ज्यादा कोडोन हो सकता है, and 64 codon is sufficient for coding the 20 amino acids, but maybe one amino acid is coded by more than one codon। ओके, एक के लिए एक से ज्यादा कोडोन होगा। अब हम देखें 64 कोडोन कैसे बनता है, कौन कौन सा कोडोन होगा। देखें कितना कोड बनाना है हमको, 64 कोडोन, and 64 codon means triplet codon consist by combination of 3 nitrogenous bases। okay, codons are triplet, it means consist by combination of 3 nitrogenous bases। now इस साइड से लेंगे अगर हम फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, okay, and this side third letter। okay, नहीं दिख रहा है। from left side first letter, upper side second letter, right side third letter। ध्यान दें, in this column first letter U, second letter U, first letter U, second letter U, and third letter from this side, it means first U। ऐसे यहां अगर देखें U U U U U U, first and second letter, and third letter U C A G। 4 codon in each box and there are 16 box, 1 2 3, sorry one more, 1 2 3, इसको बाहर लिखना होगा, यहां बनाइए UCAG, थर्ड लेटर UCA
Okay, so total 16 box and each box 4 कोडोन. टोटल कोडोन का नंबर कितना हो जाएगा? 64 कोडोन. अब यहाँ एक हमने भरा, एक और भरता हूं मैं. सी, फर्स्ट लेटर सी, सेकंड लेटर यू. सी यू सी यू सी यू सी यू. फ्रॉम राइट साइड यू सी ए जी. In this box, first letter A, third letter A, second letter A, sorry, A, and third letter U, C, A, G. Okay, so इस तरह से हमने एनसीईआरटी में दिया हुआ है. आप एनसीईआरटी में कोड देख सकते हैं. These are total 64 codons that codes for 20 amino acids. Okay. Out of 64 codons, 3 codons are called nonsense codon or termination codon. 3 are called nonsense codon or termination codon, that are called termination codon, that terminates the फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन. अब वह कौन कौन है? UAA, UAG, UGA, UAA, UAG, UGA. तुम आजा, यू आजा, यूजा. ओके, यू आजा, यू जा. सिंपली याद करने के लिए UAA, UAG, UGA, these are 3 termination codon, and these 3 codons are also called ochre, amber and opal. They are also called ochre, amber, opal. These are 3 termination codon, also called nonsense codon. Okay, they are also called nonsense codon. तो 64 में 3 nonsense codon or termination codon. Remaining are 61 codons codes for 20 amino acids, in which 2 amino acids are coded by only 1 codon. 20 में से 2 amino acid का सिर्फ एक कोडोन है, and remaining having 2 to 6 कोडोन. सबका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि किस एमिनो एसिड का कितना कोडोन होगा. 2 एमिनो एसिड का एक कोडोन है, बाकी का 2 से लेकर के 6 कोडोन हो सकता है. आगे देखते हैं कैरेक्टर और फीचर्स. एग्जांपल मिल जाएगा आपको. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोडोन. देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोडोन. फर्स्ट, कोडोन इज कॉमालेस, मीन्स no punctuation between 2 adjacent codon. Suppose that this is messenger RNA, and in messenger RNA codons A, U, G, C, A, C, C, T, sorry, C, U, G, A, etc. These are the codons. Triplet codon in this way. First codon AUG, second codon CAC, third GUG. No any punctuation marks present between 2 codons. If any one nucleotide
इज डिलीटेड और इंजर्टेड। सपोज दैट इस पोजीशन पर से हम जी को हटा दें, जी को अगर क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, ठीक है ना। अब डिलीट करने के बाद पूरा सीक्वेंस जो है, कोड है, वह चेंज कर जाएगा। देखिए फर्स्ट कोड क्या हो जाएगा, AUC ACC UGA ऑल आर डिफरेंट कोड। सब क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब अगर हम कहीं एक जगह यहां पर एक हम कोडोन को सी को ऐड कर दें, तो जहां ऐड करेंगे उसके बाद का सब कोडोन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देयर नो एनी पंक्चुएशन बिटवीन टू एडजेसेंट कोडोन्स। ओके, सेकेंड इज कोडोन इज ट्रिपलेट consist of 3 nitrogenous bases. Codon triplet means consist by combination of 3 nucleotides और 3 nitrogenous bases। 3 बेस का एक कोडोन है, ठीक है, 3 बेस का एक कोडोन। थर्ड इज कोडोन इज यूनिवर्सल। सपोज दैट AUG it codes for मेथियोनीन, यह मेथियोनीन एमिनो एसिड का कोड है। आपके एनसीईआरटी बुक में जो भी 64 कोड दिया है उसमें से 3 लिखा होगा नॉनसेंस कोडोन और टर्मिनेशन कोडोन। कौन कौन था, यूआजा, यूजा मीन्स UAG, UGA। ओके, तो 3 में से चला गया किसमें, बाकी बचा 61। अब 61 में सबका एमिनो एसिड का नाम भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख सकते हैं। अब देखिए सपोज दैट AUG कोड्स फॉर मेथियोनीन एमिनो एसिड एंड दिस कोड इन ऑल लिविंग्स कोड्स फॉर मेथियोनीन। अगर कोई एक कोड है तो वह किसी भी लिविंग्स में, ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, एनिमल हो, वायरस अगर कोई है, जेनेटिक मटेरियल जिसका डीएनए है, तो सबका कोड एक जैसा होगा। सो इट इज कॉल्ड कोड इज यूनिवर्सल। इट इज कॉल्ड कोड इज यूनिवर्सल। कोड यूनिवर्सल मीन्स वन कोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड इन ऑल लिविंग्स। नेक्स्ट, कोड यूनिवर्सल मीन्स same genetic code is present in all livings, in plants, animals, virus, etc. And next is codon is unambiguous. It means any one codon is for a specific amino acids. एक कोड सिर्फ एक ही एमिनो एसिड को कोडेड करेगा, एक एमिनो एसिड से 2 कभी कोड नहीं हो सकता है। वन कोड इज अ स्पेसिफिक फॉर ओनली वन एमिनो एसिड। वन एक्सेप्शन यहां है इस रूल्स का, फीचर्स का, GUG। One code is for 2 amino acids. It is for methionine and valine. It is for 2 amino acids. One is for methionine and other is for valine. तो यह इसका एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, कोडोन इज नॉन ओवरलैपिंग। कोडोन इज नॉन ओवरलैपिंग मीन्स प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस फॉर्म। जैसे अगर हम AUGCACGGCA कोड लिखा तो हम कंटिन्यू फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। AUG, इसके फर्स्ट AUG, सेकंड CAC, थर्ड GGC। अगर इसको ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या हो सकता है, देखिए तो AUG फर्स्ट कोडोन AUG, ओके, सेकंड
एक बेस का ओवरलैप करते हैं। तो नेक्स्ट इज GCA, 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 एक को फिर ओवरलैप कीजिए तो ACG, ACG, दिस इज इन ओवरलैप्ड फॉर्म बट इट इज रॉन्ग। ओके, कोडोन इज नॉन ओवरलैपिंग। नेक्स्ट, कोडोन इज डीजेनरेटिव। कोडोन इज डीजेनरेटिव। नंबर ऑफ एमिनो एसिड 20, कोडोन 64, 3 आर टर्मिनेशन कोडोन, remaining codons are 64 amino acids, 20. It means more than one amino acid is coded by, one amino acid is coded by more than one codon. One amino acid is coded by more than one codon. This nature of triplet codon is called degenerative. This nature is called degenerative. Okay, degenerative means one amino acid is coded by more than one codon. एक एमिनो एसिड का एक से ज्यादा कोडोन होना, because the number of amino acid 20 and number of codon 61, तो एक से ज्यादा है। एंड टोटल 20 एमिनो एसिड में से 2 ऐसा एमिनो एसिड है जिसका सिंगल कोड है। 1 EUGG 4 ट्रिप्टोफान एंड AUG4 मेथियोनिन। इट मीन्स ट्रिप्टोफान एंड मेथियोनिन, ये 2 एमिनो एसिड का सिंगल कोड है। बाकी जो भी एमिनो एसिड है उसका कोडोन का नंबर 1 से ज्यादा और मैक्सिमम 6 तक हो सकता है। मोस्टली हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम कोडोन ऑफ एमिनो एसिड इज 6। एक एमिनो एसिड के लिए सबसे जो मैक्सिमम कोडोन हो सकता है वह 6 हो सकता है, और 6 के लिए 3 है, ल्यूसीन, सेरीन, आर्जिनिन। 3 है, कौन कौन? ल्यूसीन, सेरीन, आर्जिनिन। These 3 amino acids have maximum codon and number of codon for these 3, यानी एक का 3 कोडोन ये मैक्सिमम है। बाकी सबका किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, 2 का सिंगल सिंगल UGG और AUG एंड 3 आर टर्मिनेशन कोडोन। 3 आर टर्मिनेशन कोडोन ऑल्सो कॉल्ड ओकरे एम्बर ओपल। ओकरे एम्बर ओपल नाम लिखे थे कहीं? नहीं, इसके पहले लिखे थे। चलिए, ये हो गया। अब देखिए एक टर्म है इसमें, बोवल हाइपोथेसिस और एक सेंट्रल डॉगमा। छोटा छोटा 2 टर्म है, उसको देख लेते हैं। बोवल हाइपोथेसिस, जनरली एन एंटीकोडोन ऑफ tRNA recognizes the only one codon, but in some cases one anticodon recognizes more than one codon of messenger RNA. जनरल कंडीशन में एक एंटीकोडोन एक कोड को पहचाना, लेकिन कभी कभी सेम एंटीकोडोन एक से ज्यादा कोडोन को पहचान लिया, एंड दैट इज कॉल्ड बॉबलिंग। दिस हाइपोथेसिस इज कॉल्ड बॉबलिंग हाइपोथेसिस। ओके, दिस हाइपोथेसिस इज कॉल्ड बॉबलिंग हाइपोथेसिस। देखें, जनरली दिस इज tRNA, ट्रांसफर आरएनए पढ़ चुके हैं। ट्रांसफर आरएनए के कई आर्म्स है। दिस इज कॉल्ड एंटीकोडोन आर्म। In loop of anticodon, 7 unpaired bases are present, in which 3 bases are called anticodon.
तो सपोज दैट AAG एंटीकोडन ऑफ दिस ट्रांसफर RNA, GGU फॉर दिस, AAG फॉर ये, यानी ये 3 tRNA का एंटीकोडोन है और यह है मैसेंजर RNA। ये क्या है? मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA में क्या होगा? ट्रिपलेट कोडोन होगा। मैसेंजर RNA में ट्रिपलेट कोडोन होगा और इस ट्रिपलेट कोडोन को पहचानता है tRNA अकॉर्डिंग टू कोड प्रेजेंट इन मैसेंजर RNA। ट्रांसफर RNA कैरी एमिनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम एंड राइबोसोम फॉर्म्स प्रोटीन बाय फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, इस कोड के अनुसार tRNA साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड को कहां ले जाता है? राइबोसोम के पास ले जाता है। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम उस एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, रिजल्ट होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नाउ सी जनरली दीज आर एंटीकोडोन ऑफ tRNA। AAG, अब इसका कोड क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री बेस, तो UUC एंटीकोडोन AAG का कोड UUC, नॉट जी, सॉरी, UUC। इन दिस कंडीशन CCA and in this condition UUC. Okay, but due to wobbling anticodon AAG recognizes two codons UUC and UUU। UU को भी यही रिकॉग्नाइज कर लेता है, जबकि होना चाहिए इसके लिए क्या? UUC, लेकिन ये एक से ज्यादा कोड को रिकॉग्नाइज कर रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल एंटीकोडोन AAG recognizes the two codon। कौन कौन? UUC and UUU, and these both codons for phenylalanine। दोनों कोड एक ही एमिनो एसिड का है और वह एमिनो एसिड कौन है? फिनाइलएलानीन। ओके, नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक, दैट इज, एक चीज जान लीजिए, बॉबल हाइपोथेसिस गिवन बाय क्रिक। नेक्स्ट सेंट्रल डॉगमा ऑल्सो गिवन बाय क्रिक। सेंट्रल डॉगमा ऑल्सो गिवन बाय क्रिक। अब सेंट्रल डॉगमा है क्या? तो मैं पहले बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड, इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन डीएनए। डीएनए ट्रांसफर देयर इंफॉर्मेशन इन मैसेंजर आरएनए। जो भी डीएनए में कोड है वह कहां ट्रांसफर किया? मैसेंजर आरएनए। एंड अकॉर्डिंग टू कोड प्रेजेंट इन मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए कैरीज एमिनो एसिड्स, transfer the amino acids to ribosomes where formation of protein takes place. It means unidirectional transfer of information for protein synthesis, from DNA to ribosome। डीएनए से राइबोसोम तक, डीएनए से मैसेंजर आरएनए तक जो इंफॉर्मेशन जा रहा है, that is called central dogma। That is called central dogma। It means unidirectional flow of the transfer of unidirectional transfer of information for
protein synthesis is called central dogma. Is called central dogma. अब देखिए, सपोज है डीएनए मोलिक्यूल है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन प्रोसेस इज कॉल्ड replication. Formation of RNA from DNA, transcription, and formation of protein according to code present in RNA is called translation. So one way flow, unidirectional flow information is called central dogma. लेकिन यह कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है. एज फॉर एग्जाम्पल, वायरस इन विच डीएनए इज नॉट प्रेजेंट. इट मीन्स वायरस इन विच आरएनए इज प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल. अगर आरएनए प्रेजेंट हो तो आरएनए से डायरेक्ट कैसे ट्रांसफर होगा इंफॉर्मेशन, तो वहां प्रोसेस रिवर्स हो जाता है और उसका नाम देते हैं रिवर्स सेंट्रल डॉगमा. दैट इज कॉल्ड रिवर्स सेंट्रल डॉगमा, ऑल्सो कॉल्ड टेमिनिज्म, बिकॉज रिवर्स सेंट्रल डॉगमा वाज डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स सेंट्रल डॉगमा. रिवर्स सेंट्रल डॉगमा इज ऑल्सो कॉल्ड टेमिनिज्म. ओके, reverse central dogma given by Temin and Baltimore and discovered in Ross sarcoma virus. Sarcoma virus means virus that cause cancer, and virus that contains RNA as genetic material is called retrovirus. It means Ross sarcoma virus is a type of retrovirus. In virus, RNA is present as genetic material, and RNA कैसा आरएनए, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट इन वायरस एज जेनेटिक मटेरियल. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म्स डीएनए इन होस्ट बॉडी. वायरस एंटर्स इन होस्ट बॉडी एंड फॉर्म्स डीएनए. देखिए यहां डीएनए से बना आरएनए, प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. एंजाइम इज ट्रांसक्रिप्टेज. इसका उल्टा यहां हो रहा है, आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए. इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. And now DNA again forms RNA and RNA forms protein. Okay, DNA से फिर RNA बन जाएगा, मैसेंजर RNA, मैसेंजर RNA से अमीनो एसिड आएगा और प्रोटीन बनेगा. And this also occurs in host body. Sometimes the DNA of virus, ये किसका वायरस होगा, आंसर किसका डीएनए, वायरस का. डीएनए ऑफ वायरस ऑल्सो एंटर्स इन होस्ट जीनोम. कभी कभी यह डीएनए होस्ट जीनोम के अंदर इंटर कर जाता है एंड कॉजेज कैंसर. दैट टाइप ऑफ जीन इज कॉल्ड ऑन्कोजीन. कैंसर कॉजिंग जीन इज कॉल्ड ऑन्कोजीन. और देखिए, डीएनए प्रोड्यूस्ड बाय आरएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज कॉल्ड cDNA, मीन्स complementary DNA. It is called complementary DNA. ओके, अब हम लोग इसके बाद के लेक्चर में देखेंगे ट्रांसलेशन और प्रोटीन फॉर्मेशन. ओके.